Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Even imagine so many people coming and chanting the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna and Pranam dear devotees. So welcome to our Sunday evening Bhagavad Gita session, and we are currently reading from Bhagavad Gita introduction, and we will continue from same. Let us start. Let me share the screen.
we will first do Mangalacharan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. When will Srila Rupa Goswami Prabhupada, who has established within this material world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, give me shelter under his lotus feet? Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavancha Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitancha. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master and unto the feet of all Vaishnavas. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of Srila Rupa Goswami along with his elder brother Sanatan Goswami, as well as Raghunath Das, Raghunath Bhatt, Gopal Bhatt, and Srila Jeev Goswami. I offer my respectful obeisances to Lord Krishna Chaitanya and Lord Nityanand along with Advaita Acharya, Gadadhar, Srivas, and other associates. I offer my respectful obeisances to Srimati Radharani and Shri Krishna along with their associates Sri Lalita and Vishakha. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. O my dear Krishna, you are the friend of the distressed and the source of creation. You are the master of the gopis and the lover of Radharani. I offer my respectful obeisances unto you. Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. I offer my respects to Radharani, whose bodily complexion is like molten gold and who is the queen of Vrindavan. You are the daughter of King Rishabhanu and you are very dear to Lord Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnav devotees of the Lord. They can fulfill the desire of everyone, just like the desire trees, and they are full of compassion for the fallen souls. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. I offer my obeisances to Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivas and all others in the line of devotion. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Veshatarine. Jagad Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. So we are currently reading from Bhagavad Gita and just a minute.
हरे कृष्णा. So who remembers? हमने last time class session में क्या पढ़ा था? Anybody remembers? Any point? हरे कृष्णा. आप chat में लिख सकते हैं. So we read about material world. हमने भौतिक जगत के बारे में पढ़ा था कि भौतिक जगत spiritual world का क्या है? Anybody remembers? Krishna Prabhuji, a Hare perverted, Krishna. yes, Prabhuji, it is perverted reflection of spiritual world. Yes, Arti Prabhu. Hare Krishna. Thank you. Yes, so we read कि this material world is a perverted reflection of a spiritual world, and we are looking for happiness in the material world, but we are not able to find it because happiness is there. Happiness is existing in the material spiritual world, but जैसे कि एक पेड़ पे लगे आम का अगर मैं प्रतिबिंब नदी में देखूंगा और मैं अगर उसके आम को अगर मैं नदी में खोजने चले जाऊंगा मुझे वो नहीं मिलेगा, है ना. इसी प्रकार से तो जो भौतिक जगत है वो भगवान क्या बताते हैं 15वें अध्याय में कि भौतिक जगत जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो आध्यात्मिक जगत है उसका एक प्रतिबिंब है, उसका एक रिफ्लेक्शन है और परवर्टेड रिफ्लेक्शन है. तो जो वहां पे होता है वो यहाँ पे उसका ऑपोजिट बन जाता है. लाइक लव देयर बिकम्स लस्ट हियर, एंड वहां पे एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट, हियर एवरीथिंग बिकम्स इन ड्युअलिटी. एंड मेघा माताजी इज राइटिंग, we should not be attached with material life and we should take advantage of human life. Okay, yes, कि this human life is very very rare. We get manushya naam sahasreshu, we read about that, and we should take advantage of it. And and how we should take advantage of it, that we should take to this process of Krishna consciousness and we should stick to it. And और हमको भगवान की we should read Bhagavad Gita. Mataji is saying yes, we should read Bhagavad Gita, and because reading Bhagavad Gita is like taking the association of the Lord. और क्योंकि भगवान ने जो बोला है और भगवान में कोई अंतर नहीं है, एंड क्योंकि कृष्णा इज एब्सोल्यूट और उनके जो वर्ड्स हैं वो भी एब्सोल्यूट है, उनका जो नाम है वो भी एब्सोल्यूट है, उनका जो पैराफर्नेलिया है, उनके जो फॉर्म है, पास्ट टाइम्स है, एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट. देयर इज नो डिफरेंस. एंड associating reading Bhagavad Gita, hearing Bhagavad Gita, reading Srimad Bhagavatam, hearing Srimad Bhagavatam is Shravanam Kirtanam, and that is like associating with the Supreme Spirit. और मैं प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रहा था आज ही, तो उसमें कल सुन रहा था, तो उसमें प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, दैट जिस प्रकार से प्रभुपाद एक एनालॉजी दे रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर हम जो आयरन रॉड का एग्जांपल ले सकते हैं कि आयरन रॉड अगर उसको हमें फायर में डाल दूंगा तो देन आयरन रॉड आल्सो विल बिकम फायर. सिमिलरली तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि आयरन रॉड इज स्टिल आयरन रॉड देयर, बट इट हैज नाउ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फायर. तो wherever that iron rod will get touched, that thing will get burnt. And how that has happened, iron rod when it is put to fire, iron rod ने वो सारे जो प्रॉपर्टीज थी, वो जो अग्नि की, जो फायर की, वो उसने ले ली. कैसे ले ली? एसोसिएशन की हेल्प से. इसीलिए that for us to become spiritual and to make our senses spiritual, we have to associate with that thing which is spiritual, है ना. For example, कि we should read Bhagavad Gita, and Megha Mata is also writing along with taking Hari Naam. Yes, we should take to this process of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and stick to it. And similarly, like हम जो devotees हैं उनका हम संग कर सकते हैं. We should take association of devotees, क्योंकि जितना हम भक्तों का संग करेंगे उतना ही हमें वो वाली जो क्वालिटीज हैं जो भक्तों के अंदर होती हैं वो हमारे अंदर आएंगी. और तो this is the benefit of taking association. और दूसरा हमने एक और चीज पढ़ी थी लास्ट टाइम, उसमें ये पढ़ा था हमने कि मृत्यु के समय जो हम सोचते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही
हमारा जो अगला जीवन है हमको वैसा उसमें वैसा शरीर में प्राप्त होता है। और उस प्रकार से भगवान क्या कह रहे थे कि अगर आप मेरा चिंतन करेंगे तो आप मेरे धाम में आएंगे और मेरे धाम में आने के बाद फिर वापस नहीं आएंगे। तो ये भी हमने पढ़ा था। तो इसके बाद बट इसी को आगे कंटिन्यूटी बनाने के लिए इसी से हम शुरू करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस प्रभु जी। ठीक है माता जी, थैंक यू। Yes, so let us read. The Bhagavad Gita 8.6 also explains the general principle that makes it possible to enter the spiritual kingdom simply by thinking of the Supreme at the time of death. देखिए क्या है श्लोक, यम यम वापि स्मरण भावम त्याजते अंत कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः. Whatever state of being one remembers when he quits his present body, in his next life he will attain to that state without fail. Now first we must understand that material nature is a display of one of the energies of the Supreme Lord. भगवान की कितनी एनर्जीज हैं, कोई कौन बता सकता है कि भगवान की कितनी एनर्जीज हैं? ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन में ये आ चुका है कि भगवान की कितनी एनर्जीज हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस राजदीप प्रभु। प्रभु जी, मटेरियल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी, जीव शक्ति। यस, जैसे राजदीप प्रभु जी ने बताया कि भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। एक है अंतरंगा शक्ति, एक है बहिरंगा शक्ति और एक है तटस्थ शक्ति। इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी है भगवान की इंटरनल पोटेंसी, जिसको हम बोलते हैं योग माया, और एक्सटर्नल एनर्जी है महामाया, जिसको हम माया की तरह से बोलते हैं, जो कि भौतिक जो ये सारा मटेरियल वर्ल्ड है, दैट इज लॉर्ड्स एक्सटर्नल एनर्जी। एंड देयर इज येट अनदर एनर्जी विच इज para, which is called marginal energy, तटस्थ शक्ति, जिसमें सारे लिविंग एंटिटीज आते हैं। So we are also Lord's energy, and जो भौतिक जगत है वो भी भगवान की एनर्जी ही है और भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी में आता है वो। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो भी हम सोच सकते हैं वो सब कुछ इट कैन डायरेक्टली बी लिंक्ड विद द गॉड। जैसे कि इसका एग्जांपल एक और प्रभुपाद अपने लेक्चर में देते हैं कि जैसे कि जो मिट्टी होती है, अर्थ, जिसको हम मिट्टी को हम अर्थ भी बोलते हैं, राइट? तो अर्थ से लकड़ी मिलती है हमें, है ना? जो पेड़ होते हैं वो अर्थ में, धरती में उगते हैं और मिट्टी से हमको कह सकते हैं कि लकड़ी मिलती है। लकड़ी से हम अगर लकड़ी को जलाते हैं तो पहले आता है धुआं, उसके बाद जो आती है वो है आग, फायर आती है, और फायर के बाद आती है हीट। तो जो लास्ट एलिमेंट है यहाँ पे वो है हीट, और जो इनिशियल एलिमेंट है वो क्या है? अर्थ, है ना? तो क्या कोई कह सकता है कि अर्थ से हीट मिलती है? हाँ भी और ना भी। किस प्रकार से? क्योंकि अर्थ से हमको मिल रही है लकड़ी, लकड़ी से आती है स्मोक, और स्मोक के साथ आता है फायर, और फायर से आती है हमको हीट, गर्माहट। तो क्या कोई लिंक है दोनों में आपस में कि गर्माहट में और अर्थ में? यस, लिंक है, क्योंकि ये सारी चेन बनती है। इसी प्रकार से जो भी हम पूरे भौतिक जगत में जो भी हम देखते हैं, कुछ भी महसूस करते हैं, कुछ भी हम जो एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर जो फील कर सकते हैं, वो सब कुछ हम भगवान के साथ उसे लिंक कर सकते हैं। ये आता है ईशावास्यम प्रिंसिपल में, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो ये भी प्रभुपाद एक बार अपने लेक्चर में इसको समझाते हैं कि एवरीथिंग इज एमिनेटिंग फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड and he is complete in himself, and after everything has emanated he still remains the complete. तो ये हमने थोड़ा सा जाना भगवान के बारे में, और भगवान के कि हम किस प्रकार से सारा कुछ है जो वो हम भगवान के साथ रिलेशन में उसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। In the Vishnu Puran 6.7.61, the total energies of the Supreme Lord are delineated. विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञा तृतीय शक्तिर इष्यते. The Supreme Lord has diverse and innumerable energies which are beyond our conception. However, great learned sages or
Liberated souls have studied these energies and have analyzed them into three parts. देखिए वही आ गया. All the energies are of Vishnu Shakti. That too say they are different potencies of Lord Vishnu. The first energy is para, transcendental. The living entities also belong to the superior energy. And as has already been explained, the other energies, material energy, are in the mode of ignorance. At the time of death, either we can remain in the inferior energy of this material world, or we can transfer to the energy of the spiritual world. So the Bhagavad Gita says, Yam yam vapi smaran bhavam tyajate antakalevaram tam tam eveti konteya sada tad bhava bhavitah. Whatever state of being one remembers when he quits his body, his present body, in his next life he will attain to that state without fail. तो क्या ऑप्शन है कि या तो मैं भगवान के अंतरंगा शक्ति I can remain in the interior energy or I can remain in the exterior energy. So that is our choice. It is completely dependent on ourselves, what we do throughout our whole life and how we will what choices will we make. That is completely dependent on this thing, that where will I, मैं अपना किस तरफ मुंह करूंगा, क्या मैं सूर्य की तरफ मुंह करूंगा या फिर मैं अंधकार की तरफ मुंह करूंगा. तो इस प्रकार से if I will face towards Krishna, that is sun. If I will face to away from Krishna, that is ignorance or darkness. In life, we are accustomed to thinking either of the material or of the spiritual energy. Now, how can we transfer our thoughts from the material energy to the spiritual energy? देखिए वही प्रश्न आ गया कि practically मैं इसको कैसे कर सकता हूँ. तो पढ़िए, आइए पढ़ते हैं. There are so many literatures which fill our thoughts with the material energy, newspapers, magazines, novels, etc. Our thinking, which is now absorbed in these literatures, must be transferred to the Vedic literature. The great sages, therefore, have written so many literatures such as the Puranas. The Puranas are not imaginative. They are historical records. In the Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, there is the following verse. Maya Mugdha Jiver Nahi Swatha Krishna Gyan Jiver Kripa Kaila Krishna Veda Puran. The forgetful living entities or conditioned souls have forgotten their relationship with the Supreme Lord and they are engrossed in thinking of material activities. Just to transfer their thinking power to the spiritual sky, Krishna Dwapayan Vyas has given a great number of literatures. यहाँ पे बात हो रही है श्रील व्यास देव की, जिन्होंने हमको महाभारत दी, सारे वेद पुराण को उन्होंने रिटन फॉर्म में हमको दिया और श्रीमद् भागवतम भी उन्होंने हमको दी. First he divided the Vedas into 4, then he explained them in the Puranas, and for less capable people he wrote the Mahabharata. In the Mahabharata there is given the Bhagavad Gita, and then all Vedic literatures is summarized in the Vedanta Sutra. And for future guidance, he gave a natural commentation on Vedanta Sutra called Srimad Bhagavatam. We must always engage our mind in reading these Vedic literatures. तो देखिए प्रभुपाद ने हमको क्या विकल्प बताया कि या तो हम अब हमको अपना we have to give attention to something, right? Either we give attention to material things or we have to give attention to spiritual things. Giving attention means either I'm scrolling on Facebook, Instagram, so many other things are there, or going through these mundane things like newspaper, magazines, where everything is repetitive, है ना? There is nothing new which is there, and it is like Prabhupada कहते थे that news is nothing new. It is only the same thing happening to new people. कुछ नया नहीं हमको मिलता है, बस वही चीज नए लोगों के साथ हो रही है. So that becomes news. And but what we should do, we should deviate our mind from these material energy things to spiritual energy. Like we can read Vedic literature. For example, जैसे हम अभी कर रहे हैं, we are reading from Bhagavad Gita, and so like that. और उसमें प्रभुपाद हमको ये बता रहे हैं that विकल्प क्या है, that what we should do practically, because Bhagavad Gita is not about only कि मैंने सुना और मुझे समझा, because anything and everything that we are hearing
must culminate into something practical. ओके कि मैंने आज ये 1 घंटा मैंने इस सेशन को सुना, या फिर 1 घंटा मैंने किसी और प्रभु जी से सुना। ऑनलाइन आजकल इतना कुछ मैं सुन सकता हूँ, या सुन सकती हूँ, या फिर सुन रही हूँ, पर उससे क्या हो रहा है कि मेरा जो जीवन है उसमें मेरे क्या परिवर्तन आ रहा है, मैंने क्या चीज सीखी उससे, मैंने अपनी लाइफ में उससे क्या उतारा, मैंने क्या सीखा उस चीज से, मुझे मुझे क्या मिला, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मैं घर क्या लेके गया उस चीज से, उसको पढ़ने के बाद। सो दैट वी शुड कंटेम्पलेट एंड दैट वी शुड सी, बिकॉज भगवत गीता इज नॉट जस्ट थ्योरी, इट हैज टू इट डील्स विद प्रैक्टिकल parts of life, and the most practical book is Bhagavad Gita only. Just as materialists engage their minds in reading newspapers, magazines, and so many materialistic literatures, we must transfer our reading to these literatures which are given to us by Vyasdev. In that way, it will be possible for us to remember the Supreme Lord at the time of death. और देखिए उसका जो सारा कुछ देखिए 3 चीजों में डिवाइडेड है। 3 तरह के ज्ञान है, संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध क्या है कि मेरा भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या है, और प्रयोजन क्या है कि मुझे क्या पाना है। अगर यहाँ पे हम प्रयोजन माने कि मुझे अंत काल के समय में, अंत काल में अगर मुझे भगवान का स्मरण करना है तो वो मेरा प्रयोजन हो गया। प्रयोजन मतलब व्हाट इज द गोल, एंड अभिधेय मीन्स व्हाट इज द वे टू अचीव दैट गोल। और अभिधेय क्या है? अभिधेय ये है कि हम भगवान, जो वैदिक लिटरेचर्स हैं, जो ये वैदिक शास्त्र हैं, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उसका श्रवण करें, उसका कीर्तन करें, उसको हम सुने, और कृष्ण कथा सुने हम, ताकि हमारा जो ये प्रयोजन है कि मैं अगर अंत समय में अगर मैं भगवान का स्मरण करना चाहता हूं तो ये हो सके। This is the only way suggested by the Lord and he guarantees the result. देखिए, there is no doubt. कोई कह सकता है कि ओके, तो गारंटी क्या है कि ठीक है लास्ट मोमेंट पे मैंने अगर भगवान को याद कर लिया। कहाँ लिखा है ऐसा कि भगवान को याद करने से मुझे भगवान का धाम मिलेगा उस तरह से, और कैसे होगा? तो देखिए आगे ही बता रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय अर्पिता मनोबुद्धिर माम एवेश्यासि असंशया। Therefore, Arjun, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time continue your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. Practical, isn't it? उन्होंने ये नहीं बोला कि हे अर्जुन तुम सब कुछ छोड़ दो और मेरी 16 माला का जप करो। सामने कौरव है तो क्या हुआ, तुम्हारी 16 माला कंप्लीट नहीं हुई, तुम्हारी 32 माला 64 माला कंप्लीट नहीं हुई, तो chanting is more important, you do this. No, उन्होंने ये नहीं कहा। What did he say? He said, do your prescribed duty and along with that you keep you fight, do your prescribed duty of fighting, and at the same time you remember me in the form of Krishna. Mam anusmara yudhya cha tasmat sarveshu kaleshu. So this is practical. So ये और हमारे लिए क्या practical है? That I don't have to change my position. I don't have to say, oh, bhakti means कि I have to leave this, I have to मुझे तो जैसे कि कईयों को डर लगता है भक्ति से कि वो भक्त बन जाएंगे, या फिर अगर भक्ति में आ जाएंगे तो वो बाबा बन जाएंगे, या फिर मेरे को ये छोड़ना पड़ेगा, जॉब छोड़नी पड़ेगी, ये मेरा परिवार छोड़ना पड़ेगा, मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। We remain there in whichever ashram we are, in whichever situation we are, we remain there, we keep on doing our activities. But what is important? The change of consciousness is important. पहले जैसे हम करते थे अभी भी हम वही कार्य कर रहे होंगे, मैं अभी भी जॉब ही कर रहा हूँ और सब कुछ इसी तरह से चल रहा है, बट जो चेतनता है उसमें परिवर्तन आ गया। जो जिन लोगों से हम बात करते हैं उसमें परिवर्तन आ गया, और जिस प्रकार से हम जीवन जीते हैं, जो जीवन का उद्देश्य है वो बदल जाता है। तो उस तरह से परिवर्तन आते हैं, और जो हम खाते हैं उसमें चेंज आ जाता है। सो बट हम नहीं बदले उस तरीके से, बट हमारी जो चेतनता है उस तरह से बदल गई, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से बदल जाते हैं उसमें, और बदलते हैं अच्छे के लिए। परम दृष्टा निवर्तते, कि आई हैव, अगर मैंने कुछ पीछे छोड़ा तो छोड़ा इसीलिए होगा क्योंकि मुझे कुछ बेहतर मिल गया होगा, उससे कुछ बेटर मिल गया होगा।
मान लीजिए आज मेरे पास एक हैचबैक कार है, मेरे पास 4 सीटर 5 सीटर कार है, कल को अगर मैंने बड़ी कार ले ली या फिर अगर मैंने एक नई कार ले ली, तो मतलब मुझे उससे बेटर मिल गई होगी कि फिर मैं उससे बेटर ले सकता हूँ, इसीलिए ले ली ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने आप को डाउनग्रेड कर लिया और मैंने अपनी बड़ी बड़ी कार छोड़ के पुरानी वाली ले ली। अगर मैंने नई ले ली तो इसका मतलब मेरे को उसमें कुछ बेटर दिख रहा होगा। इसी तरह से अगर हमने अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन कर लिया तो इसका मतलब कि मुझे वो अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैंने उससे परिवर्तन किया। वो किस तरह से? बिकॉज वी गेट हायर टेस्ट of bhakti, we get higher taste of Krishna consciousness, we get higher taste of what is the meaning of life, what is the goal of life. And there may be many difficult situations which comes in our life which makes us perplexed ki Prabhuji or Mataji, what should I do now? I am in this kind of a problem, this kind of a situation. So what we should do is that first of all we should pray to Srila Prabhupada, and we should pray to Krishna with a sincere heart that this is who I am in this kind of a situation and this is my problem, please show me the way. And most importantly, we should share that thing with somebody who is senior to us in devotion and who are senior devotees, so that they can guide us. And of course we can share the same thing with those who are equal among us. And ददाति प्रति गृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति पृच्छति मतलब कि जो मेरी गुह्यतम जो बातें होती हैं वो मैं दूसरों के साथ शेयर करूं, जो डिवोटीज हैं उनके साथ मैं साझा करूं, क्योंकि वो भी इस चरण से गुजरे होते हैं और वो आपको बता सकते हैं कि इसमें आप ऐसे करिए माता जी, आप ऐसे करिए प्रभु जी। सो लाइक दैट। कई बार सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं वेयर इवन इक्वल डिवोटीज दे आर नॉट एबल टू हेल्प यू, and so in that situation we should approach to our seniors with submissiveness and we should ask them what should I do. And उससे उसका फायदा क्या होता है कि लेट्स सपोज मुझे नहीं पता आपकी आपकी जो प्रॉब्लम है उसका आंसर अगर मुझे नहीं पता, और हो सकता है जनरली मुझे ना पता हो, और ऐसा भी हो सकता है आप जिनको अप्रोच कर रहे हैं जो सीनियर हैं उनको ना पता हो, बट क्योंकि you are going in the parampara and they will डायरेक्ट यू टू द राइट पर्सन। एंड वो आपकी बात अगर उनको नहीं पता तो वो आगे और किससे पूछेंगे, किसी महाराज से पूछेंगे, या फिर जो इन चीजों को डील कर सकते हैं वो आपको बताएंगे कि व्हाट वी शुड प्रैक्टिकली डू इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। So we should approach to our seniors and we should ask them, this is my situation, this is what I feel, and we should not keep anything back with ourselves, that I am telling half of the thing and half of the thing I am keeping with myself. In that us tarike se we will be doing injustice to ourselves, because जो जिनको आप बता रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा कि हमारी रियल पिक्चर क्या है. सो इन दैट वे वी शुड सीक गाइडेंस, वी शुड सीक हेल्प with from these devotees. So like that. आगे बढ़ते हैं. He does not advise Arjun simply to remember him and give up his occupation. देखिए उन्होंने ये नहीं बोला कि हे अर्जुन क्या रखा है फाइट में, अहिंसा को फॉलो करो और सब कुछ छोड़ दो, छोड़ छाड़ दो और भजन पे ध्यान दो, अपना चैंटिंग पे ध्यान दो, चलो चलते हैं और छोड़ो इस लड़ाई में क्या रखा है. उन्होंने ये नहीं बोला. उन्होंने बोला नो, द लॉर्ड नेवर सजेस्ट एनीथिंग इम्प्रैक्टिकल. In this material world, in order to maintain the body, one has to work. Human society is divided according to work into 4 divisions of social order: Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. The Brahman class or intelligent class is working in one way. The Kshatriya or administrative class is working in another way. The mercantile class and the laborers are all tending to their specific duties. In the human society, whether one is a laborer, merchant, administrator, even if one belongs to the higher class and is a literary man, a scientist, or a theologian, he has to work in order to maintain his existence. The Lord therefore tells Arjun that he need not give up his occupation, but while he is engaged in his occupation, he should remember Krishna, Ma Manusmara. If he doesn't practice remembering Krishna while he is struggling for existence, then it will not be possible for him to remember Krishna at the time of death, because death is the most critical situation of everyone's life. Death is something which is, we cannot even imagine that what
happens at the time of death, and it is the most critical and the biggest test that anybody can get is death only, because that is a very emergency situation, and we are completely out of control of all the circumstances that are about to happen. Right now, let's suppose I'm sitting on this chair reading Bhagavad Gita on one screen, seeing devotees on another screen, very normal situation, completely in my in so-called in my control, and very easy to remember. Oh, Krishna, Krishna is there, and I can chant very easily and like that. But at the time of death, it is not very easy, because that is the most difficult situation that anybody can ever imagine. And but if we take the shelter of the holy name, if we take the shelter of the Lord, if we take the shelter of the pure devotees of the Lord, if we take the shelter of the lotus feet of the pure devotees of the Lord, like Srila Prabhupada, then it becomes very easy for us to surpass that situation, and we are able to remember um, the lotus feet of the Lord at the time of at that crucial time. And that is what we should always aspire. We should, and not just aspire, we should make some practical actions to 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 help ourselves become into that kind of a position where we can remember the Lord at the time of death. But the question is, if in such a simple position, if in such a comfortable position, if you are not able to do that, अगर मेरा chanting में मन नहीं लग रहा, जो मेरा नहीं लगता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो और if you are not able to do that, then how is it possible that at the time of such criticality, at the time of such what do we say, uncertainty and अननोन थिंग है ना, कि अगर हमको कोई नई सिचुएशन में डाल देते हैं तो वहीं पे कभी कभी हमारी बैंड बज जाती है, और वी आर नॉट एबल टू हैंडल हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. And that is something that we may have experienced multiple number of times in previous births and previous lives, but here we haven't experienced like that, anything like that, and we don't know, and how is it going to be there. So sometimes this kind of a thought makes us fearful also, makes us worried also. And but जैसे कि हम कहते हैं कि जो डिवोटीज होते हैं उनके लिए जो जो मृत्यु है, भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं, और जो नॉन डिवोटीज होती हैं उसमें मृत्यु भगवान के रूप में आती है. तो बहुत फर्क है दोनों में. अंतर किस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे कि एक बिल्ली होती है, अगर वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो वो अपने मुंह में अपने बच्चे की गर्दन लेके उसको पकड़ती है, और वही बिल्ली अगर किसी चूहे को पकड़ती है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, खुद खाने के लिए, तो देखिए दोनों में बिल्ली पकड़ किसी को रही, किसी जीव को ही रही है, और अपने दांतों से अपने मुंह में पकड़ रही है. बट एक चूहे के लिए बिल्ली के जो दांत हैं वो हैं मृत्यु. बट एक बिल्ली के बच्चे के लिए उससे ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं है. Isn't it? कि एक बिल्ली का बच्चा अपनी माँ के मुंह में जब वो उसने उसको पकड़ा हुआ है, उसको कुछ होने भी नहीं देती, और it is the most safest place for a kitten to be at the in the mouth of her their mother cat. And so but it is the mouth of death for a rat, for a mouse. तो ये अंतर है भक्तों में कि उनकी जो जो वो किस तरह से जो डेथ है उसको वो परसीव करते हैं, वर्सेस जो नॉन डिवोटीज होते हैं, जो भक्त नहीं होते, वो किस तरह से करते हैं. If he doesn't practice remembering Krishna while he is struggling for existence, then it will not be possible for him to remember Krishna at the time of death. Lord Chaitanya also advises this. He says, Kirtaniya Sadahari. One should practice chanting the names of the Lord always. The names of the Lord and the Lord are non-different. So Lord Krishna's instructions to Arjun to remember me and Lord Chaitanya's injunction to always chant the name of the Lord Krishna are the same instruction. There is no difference because Krishna and Krishna's name are non-different. In the absolute status, there is no difference between reference and referent. Therefore, we have to practice remembering the Lord always 24 hours a day by chanting his names
and molding our lives activities in such a way that we can remember him always. तो भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, भगवान को याद करना या फिर भगवान का नाम जपना is one and the same. तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि इतने सदा हरि, कि हमेशा भगवान का नाम लो, हरि का नाम जपो, और भगवान क्या कह रहे हैं, मां मनुस्मर युद्ध च, ऑलवेज रिमेम्बर मी। 9वें अध्याय में भी वो आके यही कहेंगे, मन मना भगवत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु माम विश्वासी युक्तवम आत्मना मत परायणा, कि मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो और हमेशा मेरा चिंतन करो, इस प्रकार से तुम मेरे और मुझे अपने आप को समर्पित करो, और इस प्रकार से तुम मुझे वापस मेरे पास वापस आ सकते हो। तो ये भगवान की इंस्ट्रक्शंस हैं भगवद गीता में हमारे लिए। हाउ इज दिस पॉसिबल? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसको करें कैसे, है ना। अगेन इट इज अ प्रैक्टिकल सिचुएशन फॉर अस। माता जी पूछ रहे हैं वर्स नंबर 9.34, माता जी। How is this possible? The acharyas give the following example. If a married woman is attached to another man, or if a man has an attachment for a woman other than his wife, then the attachment is to be considered very strong. One with such an attachment is always thinking of the loved one. The wife who is thinking of her lover is always thinking of meeting him, even while she is carrying out her household chores. In fact, she carries out her household work even more carefully so her husband will not suspect her attachment. Similarly, we should always remember the Supreme Lover, Shri Krishna, at the same time perform our material duties very nicely. A strong sense of love is required here. If we have a strong sense of love for the Supreme Lord, then we can discharge our duty at the same time remember him. देखिए क्या है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। A strong sense of love is required here. If we have a strong sense of love for the Supreme Lord, then we can discharge our duty and at the same time remember him. But we have to develop that sense of love. Arjun, for instance, was always thinking of Krishna. He was constant companion of Krishna, and at the same time, he was a warrior. Krishna did not advise him to give up fighting and go to the forest to meditate. When Lord Krishna delineates the yoga system to Arjun, ओके इससे पहले हम आगे बढ़े तो जैसे कि यहाँ पे बताया कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लव इज रिक्वायर्ड और अटैचमेंट इज रिक्वायर्ड इफ वी वांट टू रिमेम्बर। लेट सपोज इसका एग्जांपल हम किस प्रकार से ले सकते हैं ग्रॉस मटेरियल वर्ल्ड में। जैसे कि लेट सपोज मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है ऑफिस में, है ना, और मुझे मेरे सीईओ को प्रेजेंटेशन देनी है, मेरे बहुत सारे बॉसेस को प्रेजेंटेशन देनी, लेट सपोज। तो एट द बैक ऑफ माई माइंड, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है मेरे करियर के लिए, ऑफिस के लिए, सब कुछ चीजों के लिए, मैंने अच्छे से प्रिपेयर भी कर लिया, बट लेट सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे गाड़ी चलाते वक्त भी मेरे दिमाग में वही घूमता रहेगा कि मुझे वो किस तरह से बोलना है, मुझे क्या करना है, मुझे किस प्रकार से उसको करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसी चीज को याद करता जा रहा हूँ और उसी चीज को मेरे दिमाग में वही चीज आ रही है जो मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर आगे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं साथ साथ गाड़ी भी चला रहा हूँ। इसी प्रकार से हम एग्जांपल ले सकते हैं एक नवजात शिशु का और एक माँ का। लेट सपोज एक मदर है, एक माँ है, उसका भी अभी लेट से नवजात शिशु हुआ है और वो कुछ ही दिनों का है जो शिशु, और लेट सपोज कि उसको बहुत भूख लगी है और वो उसकी जो माँ है वो किचन में जाके कुछ खाना बनाएगी, कुछ करेगी और उनको देने के लिए। और बट वो क्या सोच रही है, वो सोच हमेशा अपने शिशु के बारे में रही है, ओ उसको भूख लगी है, मैं क्या करूं, पर वो खाना भी बना रही है साथ साथ। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, तो जो माँ है वो हमें इज ऑलवेज रिमेम्बरिंग हर चाइल्ड। इसी प्रकार से जो नॉर्मल भी हम यही लगता है कि वो मुझे याद आ जाती है, लेट सपोज एक मदर को या फिर एक फादर को अपने बेटे की याद आ जाती है, किसी कुछ देख लिया, जैसे कि किसी और के बेटे देख लिए या फिर कुछ और देख लिया, इमीडिएटली रिमेम्बर, ओ मेरा भी बेटा ऐसे करता है, मेरे भी बेटे ऐसे करते, इस प्रकार से, है ना। तो क्या हो रहा है कि आई एम एबल टू इमीडिएटली रिमेम्बर टू दोज whom we love and but at the same time we tend to continue our work। इसी प्रकार से एक एग्जांपल लिया है कि
कि एक मैरिड वुमन का, अगर एक मैरिड वुमन इज अटैच्ड टू हर लवर आउटसाइड ऑफ अ मैरिज, एंड अब एक तो बिकॉज इट्स अ सीक्रेट थिंग एंड उसको छुपाने के लिए, एंड बिकॉज शी इज ऑलवेज इन थॉट्स ऑफ हर लवर ओनली, एंड और उसको छुपाने के लिए, बिकॉज शी डजंट वांट टू कि कुछ कुछ राज खुल ना जाए, कुछ बाहर ना आ जाए, सो व्हाट शी विल डू, शी विल carry out her household work even more carefully so that her husband doesn't see कि वो कुछ शक हो रहा है, कोई suspicious है, ऐसा कुछ. So in that way she is always remembering her lover, but at the same time carrying out all the things of her household, normal household chores, so like that. And so this is the way that we have to remember Krishna. Ma manusmara yuddhacha का मतलब ये है कि whatever we are doing, we keep on doing, at the same time we should remember Krishna. और वो किस तरह से, and there are so many ways by which I can remember Krishna, and in practical ways also. और वो हमने आगे जाके चर्चा करेंगे नवविधा भक्ति के बारे में. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम. तो ये इतने सारे लिम्स हैं, उसमें से हम किसी को भी हम पकड़ सकते हैं, और हम उसके ऊपर we can find practical ways that how we can perform devotional service which helps me remember Krishna, because that is the goal. जो जितने भी सारे शास्त्र हैं, जितने भी सारे वेद हैं, उन सबका जो निचोड़ है वो ये है कि always remember Krishna and never forget him. और अगर कोई एक्टिविटी मुझे भगवान को भूलने में मदद करती है, सो दैट इज अनर्थ. अनर्थ मतलब अनअर्थ. अर्थ का मतलब समथिंग विच इज वैल्यूएबल, और जिसको मैं अर्थ हम समझते हैं कि लाइक मनी, लाइक दैट. और अनर्थ मतलब कि दैट विच इज नॉट वैल्यूएबल, और विच स्टॉप्स मी फ्रॉम डूइंग दैट. और सो एनीथिंग विच हेल्प्स मी टू रिमेम्बर कृष्णा, दैट इज द रियल अर्थ. And anything which helps me, which makes me to forget Krishna, that is the anarth. And इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो 4 नियम हैं जिनका हमको पालन करना चाहिए, उसमें से कौन बताएगा कि 4 नियम कौन से हैं? 4 regulative principles. Who can tell what are the 4 regulative principles? Yes, Rajdeep Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, first is no intoxication, no meat eating, no gambling, and no illicit sex. Yes, no intoxication कि हमको कोई शराब नहीं पीनी, कोई सिगरेट वाला, anything which makes us intoxicant, which is an intoxicant, it is completely, we should not do that. No meat eating, or that is understandable. And no gambling कि कोई जुआनी खेलना वैसे कुछ. And no illicit sex. Illicit sex means relationships outside of marriage. So, and if we do any kind of these, if we break these principles actually makes us forget Krishna. And if we don't do, and if we follow these principles, it will help us to at least come to the platform of human, come to the human platform, and then come to the platform of mode of goodness, and eventually come we will, with all other things, and we are able to chant the holy name of the Lord, and we are able to remember Krishna. So that is how that जो ये धर्म के जो 4 स्तंभ हैं जिसके ऊपर धर्म खड़ा होता है, वो यही है कि ये 4 नियमों को हमको पालन करना चाहिए. इन 4 नियमों के पालन से कैसे है कि no meat eating is one of the principle of dharma which gives that Jeev Daya, merciful. And no intoxication, no illicit sex means cleanliness, that we have to maintain our cleanliness. And no gambling means no lying. And no intoxication, I am forgetting कि anybody remembers what does no intoxication, जो धर्म का जो स्तंभ है उससे क्या होता है? I am forgetting the name. कि चौथा पिलर है धर्म का, that is standing on that we should not take any intoxicant substance. मैं भूल गया
sorry. I will मैं याद करूंगा and I will put it in the group. तो ये जो चार होते हैं rules or regulations, we should try to follow it, and that is how we will be able to remember Krishna. Remember Krishna means we will be able to chant the holy name of the Lord more sincerely and like that. आगे बढ़ते हैं. When Lord Krishna delineates the yoga system to Arjun, Arjun says that the practice of this system is not possible for him. Arjun Uvach, Yo ayam yogastvaya prokta samyena madhusudana etasyaham na pashyami chanchalavat sthitham sthiram. Arjun said, O Madhusudan, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. तो इसके अगले में आता है, अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि हे प्रभु, आप एक्चुअली 6th चैप्टर में भगवान अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं. अष्टांग योग इज द डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ फिजिकली प्रैक्टिसिंग द योगासन्स, और उसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि. तो इस प्रकार से ये अष्टांग योग के बारे में आता है. और अर्जुन कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा प्रभु, आई एम सॉरी. और क्योंकि जो मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस माइंड, बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट इट इज इजी फॉर मी टू कंट्रोल द विंड. मैं विंड को अपने हाथ में ले सकता हूँ, बट अपने मन को नहीं ले सकता. देखिए इतना, इससे कंपेयर कर रहे हैं अर्जुन अपने मन के बारे में, और वो कह रहे हैं कि ये मुझसे नहीं होगा. और अर्जुन ने मना कर दिया इस योग प्रणाली को, सिर्फ इस योग प्रणाली को मना किया, अष्टांग योग की प्रणाली को. और भगवान आगे बताते हैं क्या, 6ठे अध्याय के लास्ट में भगवान क्या बता रहे हैं, बट द लॉर्ड सेज योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम साम्य युक्त तमो मतः. देखिए क्या कह रहे हैं, ऑफ ऑल योगीज द वन विद ग्रेट faith who always abides in me thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. भगवान क्या बता रहे हैं कि वो जो मेरे साथ भक्ति में मेरे साथ जुड़ा है और मेरे को अपनी प्रेम भाव प्रेममयी भक्ति से मेरे लिए कोई कुछ सर्विस करता है, कोई कार्य करता है, तो वो सबसे ज्यादा मेरे साथ योग सिद्ध है. और दैट इज द हाईएस्ट, दैट पर्सन इज द हाईएस्ट योगी. और ये मेरा मत है. क्या बता रहे हैं, देखिए, योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम. श्रद्धावान भजते, अब भजते तो वही होगा ना जो किसी का भक्त होगा, तभी वो किसी को भजेगा, उसका वो नाम लेगा. साम्य युक्त तमो मता, ये मेरा मत है. और दैट इज द हाईएस्ट योगी. योगी नाम अपि सर्वेषां मतलब सारे योगियों में जो सर्वश्रेष्ठ योगी है वो ये है. और मेघा माता जी ने उसका आंसर भी दिया है कि जो चौथा स्तंभ है कि अगर हम इंटॉक्सिकेशन नहीं करते तो वो ऑस्टेरिटी है, कि जब हम इंटॉक्सिकेशन करते हैं बेसिकली तो ऑस्टेरिटी ब्रेक हो जाती है. ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या. तो ये 4 स्तंभ हैं धर्म के. जो थैंक यू मेघा माता जी फॉर टेलिंग कि ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस, नो लाइंग लाइक चीटिंग और लाइंग, एंड मर्सी. तो ये धर्म के ये 4 स्तंभ और रहते हैं जिसके ऊपर धर्म खड़ा रहता है. अगर हम इसमें से कुछ तोड़ते हैं तो हम धर्म का एक स्तंभ तोड़ते हैं, हम धर्म का एक रूल तोड़ते हैं, एंड दैट विल मेक अस फॉरगेट कृष्ण. और 6.47 में भगवान अब आगे क्या बता रहे हैं कि ये मेरा मत है कि सबसे जो परम योगी है वो है जो मेरे को मेरा श्रद्धावान भजते यो माम, है ना, साम्य युक्त तमो मता. सो दैट हु रेंडर्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू मी. लविंग सर्विस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि who renders transcendental loving service to me is the most intimately united with me in the yoga. तो जो 1 से 6 चैप्टर है जो कर्म योग आता है, भगवान कर्म योग को यहाँ पे
उसको उसको कंक्लूड करते हैं भगवत गीता में इस चैप्टर में कि सब जो जितना भी वो उन्होंने बताया उसका जो कंक्लूजन है वो ये है। उसके बाद अब यहाँ से भक्ति शुरू होती है। उन्होंने बताया कि जो भक्त है वो सब सर्वश्रेष्ठ है मेरा, और उसके बाद 7 चैप्टर से भगवान भक्ति शुरू करते हैं और वो कहते हैं यथा ज्ञास्यसि तत् श्रीनु, अब मेरा श्रवण करो, मुझे सुनो। जो इसीलिए जो 7 जो भगवत गीता में जब भक्ति शुरू होती है भगवान कहते हैं मुझे श्रवण करो, मेरे को सुनो। इसीलिए जो भक्ति के जो सारे लिम्स हैं उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट लिम्ब है वो श्रवणम कीर्तनम सबसे इंपॉर्टेंट है। और उस वो किस में आता है कि अगर हम भगवान के नाम को सुने, भगवान के नाम पे जब हम जप करते हैं तो हम श्रवण कर रहे हैं और कीर्तन दोनों ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, इजंट इट। और जब हम भगवान की जो कथा है और जब हम उसको सुनते हैं, उसको हम करते हैं, तो भी हम श्रवण कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। इसीलिए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 एक्टिविटीज हैं सारे डिवोशनल सर्विस की वो है श्रवणम और कीर्तनम। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं और यहाँ से अगली बार से शुरू करेंगे। सो वन हु थिंक्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ऑलवेज इज द ग्रेटेस्ट योगी, द सुपरमोस्ट ज्ञानी एंड द ग्रेटेस्ट डिवोटी एट द सेम टाइम। देखिए, the Lord further tells Arjun that a Kshatriya, he cannot give up his fighting, but if Arjun fights remembering Krishna, then he will be able to remember Krishna at the time of death. But one must be completely surrendered in the transcendental loving service of the Lord. This is the qualification, that we should be completely surrendered in the transcendental loving service of the Lord. और भगवान 9वें अध्याय में हमको बहुत अच्छे से बताते हैं भगवत भक्ति के बारे में। 9.26 में बताते हैं, उसके बाद 9.34 में बताते हैं, और जो कि भक्ति किस तरह से करी जानी चाहिए और किस तरह से हम करते हैं, तो हम आगे जाके उसके बारे में पढ़ेंगे। और तो यहाँ पे हम जो आज का सेशन है उसको हम विराम देंगे, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो हम अभी ले सकते हैं। तो हमने आज सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने ये जाना कि जो भगवान का जो भक्त होता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, और ये कौन कह रहा है? ये भगवान स्वयं बताते हैं भगवत गीता में 6.47 वर्ष में। आप क्लास के बाद आप खुद पढ़ सकते हैं, भगवत गीता खोलिए, 6.47 वर्ष को निकालिए और उसमें पढ़िए उसमें क्या लिखा है और क्या ट्रांसलेशन है उसकी। और उसके बाद हमने ये जाना कि भगवान ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली हम किस तरह से उनको याद कर सकते हैं। उन्होंने ये तो बोल दिया कि एट द टाइम ऑफ डेथ वी शुड रिमेम्बर कृष्णा और वी शुड रिमेम्बर हिम, बट हाउ टू डू दैट प्रैक्टिकली। वो अर्जुन को ये बता रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि युद्ध करो और बट साथ साथ मेरा ध्यान करो और मुझे रिमेम्बर करो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन ने वहां पे तीर चलाने लगे थे और उन्हें छोड़ दिया और उन्होंने अपनी जपम माला पकड़ ली और हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं किया। उन्होंने अपनी जो ऑक्यूपेशनल पोजीशन है उन्होंने उसको पूरा किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो तो क्या हो गया, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका एक तरीका है, देयर इज अ प्रैक्टिकल पार्ट टू इट। उससे समझ में आएगा कि किस तरह से हमको हाउ टू बी प्रैक्टिकल, बिकॉज भक्ति मीन्स हाउ टू बिकम प्रैक्टिकल इन अवर लाइफ। एंड दैट डज नॉट मीन दैट कि हम 5th चैप्टर में पढ़ते हैं कि योग संन्यास और जो कर्म संन्यास है और कर्म योग में से कौन सा बड़ा है। तो भगवान बताते हैं कर्म योग ज्यादा बड़ा है कर्म संन्यास में। कर्म संन्यास मतलब मैंने सारे कर्मों का त्याग कर दिया और अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बट कर्म योग का मतलब है कि मैं जो भी कर्म करता हूँ, जो भी कार्य करता हूँ, वो मैं भगवान के लिए करता हूँ। तो भगवान बताते हैं कर्म योग ज्यादा बड़ा है कर्म संन्यास से। उन्होंने ये नहीं बोला संन्यास, उन्होंने बोला कर्म योग करो, कि जो आप कर्म करते हो वो आप मेरे लिए करो। ये भगवान बताते हैं 1 से 6 चैप्टर के अंदर, और उसके बाद उससे भी ऊपर वो बताते हैं, क्योंकि 6 चैप्टर के कंक्लूजन में वो बताते हैं इससे भी जो ऊपर जो योगी है वो है भक्ति योग, भक्त योगी।
और जो मेरा भक्त है वो सबसे उत्तम श्रेणी का जो योगी हो सकता है, वो मेरा भक्त हो सकता है, क्योंकि वो मेरे को ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस रेंडर करता है, एंड ही इज इंटीमेटली यूनाइटेड विद मी, एंड ही ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी, मन मना भवन मत भक्तो। तो इस तरह से भगवान बहुत जगह भगवत गीता में हमको ये बताते हैं कि हमको किस तरह से करना चाहिए। और हमने क्या पढ़ा, और हमने ये जाना था कि जो वेद पुराण है उसमें श्रीमद् भागवतम के बारे में हमने जाना, जो व्यासदेव जी ने भागवतम लिखी और उसमें जो वेदांत सूत्र है और वो सबका इज द समरी ऑफ ऑल द वेदास, एंड उसके बाद जो नेचुरल कमेंट्री है वो श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी ने बताई है। और इस तरह से हमने ये सारा कुछ आज पढ़ा। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड कि हमको किस तरह से हाउ टू बी मोर प्रैक्टिकल in our life, and how can we imbibe all these practicality in our lives and become Krishna conscious, and like that. So इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो हम समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है या फिर अगर कोई टिप्पणी है तो we can take a few because we have some time. Hare Krishna. Any questions? Yes, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Pranam, Mataji. Thank you so much, Prabhuji, for the beautiful session. प्रभुजी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम कॉन्शियसनेस चेंज करने की बात करते हैं, तो मतलब हम अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी तो करते हैं, बट उसके साथ साथ हम अपनी कॉन्शियसनेस मतलब चेंज कर देते हैं इंटरनली। तो जैसे समटाइम्स ऐसे चैलेंज आता है कि हम घर पे तो फॉलो कर लेते हैं रूल कि हम लोग अनियन वगैरह नहीं खाते, गार्लिक वगैरह नहीं खाते, और जो मसाले होते हैं उनका भी ध्यान रखते हैं कि उसमें कहीं प्याज वगैरह का मसाला ना हो, लाइक दैट। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, लाइक सपोज किसी गेस्ट के यहाँ हम मतलब किसी के यहाँ हम गए, तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग मतलब बोल देते कि हम लोग प्याज का नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, बट समटाइम्स क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो इस चीज को ऐसे समझते हैं, अरे क्या लगा रखा है, कुछ नहीं होता, प्याज का खाने से क्या ही हो जाता है, कुछ ज्यादा ही आप लोग क्या ऐसे ऐसे करते हैं। तो वो चीज तो वो चीज क्या करती है कि ऐसा लगता है कि लोग इससे डिमोटिवेट होते हैं, लाइक दैट। तो हमको लगता है कि मतलब हमारी इस चीज से लोग और उनपे उल्टा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हाउ टू डील विद दिस? एक्चुअली क्या होता है माता जी कि जब हम इनिशियल स्टेजेस में होते हैं, एक्चुअली भक्ति आप हम ऐसे समझ सकते हैं कि भक्ति एक तरह से एक पौधे की तरह है। भक्ति लता बीज जो होता है वो एक पौधे की तरह होती है, और जब पौधा छोटा होता है तो वो बहुत वो होता है, सेंसिटिव होता है, और वो बहुत अभी मतलब जिस तरफ से विंड चले उस तरफ वो मुड़ जाता है ना। और इसी प्रकार से हमारी जो स्टेजेस होती हैं वो भी हमारी इसी तरह से निकलती हैं कि इनिशियली क्या होता है, और हर एक का टाइम अलग अलग रहता है कि हम किस तरह से भक्ति में आगे बढ़ेंगे। बट स्टार्टिंग में क्या होता है कि बिकॉज हमारे एक तो हमारी खुद की भक्ति बड़ी सेंसिटिव रहती है, और ऊपर से हम दूसरों को, और हम क्या करते हैं कि हम दूसरों के घर गए और वो कह रहे हैं कि अरे छोड़ो इसमें क्या रखा है, बट हम कन्विंस्ड हैं, बट हम ऐसे नहीं हो सकते, अभी ऐसे नहीं हुए होते उस टाइम पे कि हम दूसरों को भी कन्विंस कर लें कि अरे नहीं आप रुके मैं बताता हूँ। तो बात तो वो बनती है कि हम दूसरों को कन्विंस कर लें, बट ऐसे सिचुएशंस में इसीलिए माता जी जो भक्तों का जो संग है स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में नहीं, हर समय भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि उससे हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप किसी भक्त के घर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रसाद मिलेगा, और अगर हम भक्त के एसोसिएशन में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको प्रसाद मिलेगा। हाँ, ऐसी सिचुएशंस बहुत बार होती हैं कि जहाँ पे इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी कि ठीक है मेरे पास अभी कोई डिवोटी एसोसिएशन नहीं है, तो एट दैट टाइम वी शुड प्रे टू कृष्णा एंड आस्क फॉर हेल्प। एंड मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे हमेशा मदद मिली है, और खास करके उस समय जहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मेरे को नो निन नो गार्लिक वाला हमको खाना मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, मैं उसको ऑफर कर लूँ और मैं पाऊँ। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशंस मेरी लाइफ में आ चुकी हैं जहाँ पे कि
कई बार मतलब मेरे को ही पता लगता है कि हाँ अच्छा ऐसी जब मैं 4 साल पहले मैं ये कर सकता था, बट क्योंकि मैंने ही एफर्ट नहीं लगाया, मैंने ही एंडेवर नहीं किया, तो मुझसे नहीं हो पाया। और अभी वही सिचुएशन में तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि दूसरा व्यक्ति भी कह देता है कि ठीक है, आप आए हो, अब 5 दिन के लिए आप आए हो, अब हम आपके अपने, क्योंकि आप आए हो, तुम अपने घर में अनियन गार्लिक वाला कुछ बना ही नहीं सकते और बनाएंगे भी नहीं। एक तो वो डिपेंड भी करता है कि हमारा रिलेशनशिप किस तरह से है दूसरे व्यक्ति के साथ। अगर तो वो रिलेशनशिप गुह्य है और पर्सनल रिलेशनशिप है, तो अगर आप उनको बहुत विनम्र भाव से बताएंगे कि देखिए मैं ये चीजें फॉलो कर रहा हूँ और मुझे ऐसे मुझे उसमें अनियन गार्लिक नहीं खाना, लहसुन प्याज नहीं खाना, तो प्लीज आप मेरे लिए कुछ और बना दीजिए, एंड दे विल रिस्पेक्ट यू। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि हमको बहुत बार जाना पड़ता है, मुझे ऑफिस की वजह से भी कई बार बेंगलोर जाना पड़ा, कई बार मुझे अब्रॉड जाना पड़ा, आउट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे हम नहीं कर पाते, बट अगर हम हेल्प मांगते हैं तो वो ऑटोमेटिकली भगवान हमको देते हैं, क्योंकि अगर हम भगवान से हेल्प मांगते हैं, वो हमारी देखते हैं कि ओ ये सिंसेरिटी देखी जाती है कि कितना सिंसियर हूं मैं और मैं कितना इस चीज को फॉलो करना चाहता हूँ। और अगर है तो भगवान किसी ना किसी तरह से वो व्यवस्था कर देते हैं, और अगर नहीं हो पाती तो बट स्टिल वी शुड ट्राई कि मैं जो भी पाऊं मैं भगवान को भोग लगा के पाऊं अनियन गार्लिक के बिना, और इस तरह से। बट अगर हम एफर्ट लगाएंगे तो दैट यू विल सी माता जी, दैट कृष्णा विल हेल्प यू 1000 times more that we will but we will expect, or it only requires is our endeavor, because mercy is always there, what it requires is our endeavor. सॉरी प्रभु जी, बट ऐसा होता है ना कि जैसे हम किसी गेस्ट के घर गए और मैंने जैसे उनको पता है कि मैं प्याज या गार्लिक वगैरह नहीं खाती, तो वो लोग नहीं बनाते हैं। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं कि अरे कभी-कभी खा लिया करो, इन सब चीज़ों में क्या रखा है? तो मतलब मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि उन पे इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। वो लोग सोचते हैं कि इस्कॉन में तो ऐसा होता है Hmm. कि ये लोग मतलब बॉदर करते हैं। आई मीन उनको फिर प्यास छोड़नी पड़ेगी, उनको ऐसे करना पड़ेगा। तो मतलब मैं ये सोच रही थी कि उनकी कॉन्शसनेस पे इसका अपोज़िट इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दैट इज़ द क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं है माता जी कि उनके चेतनता के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट या ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअली आप एक्चुअली सच्चाई में वो इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आप अभी इस टाइम पे ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, एंड ऑस्टेरिटी इज वन ऑफ द ओपुलेंस। जो 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 तपस्या होती है वो एक तरह से ओपुलेंस की तरह होती है, एंड और अगर हम इस तरह से ऑस्टेरिटी करते हैं तो वो एक तरह से ओपुलेंस की तरह आता है, और दूसरे व्यक्ति से देखते हैं ओ ये अनियन गार्लिक भी नहीं खाते, वो तो छोड़ो ये टी कॉफी भी नहीं पीते, और तो करते क्या हो तुम, जीते कैसे हो उस लाइफ में, कोई एंजॉय यस। करते भी हो कि नहीं करते हो। तो ऐसा नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट एंड हु वी आर। जैसे कि आपको मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ अपने अपनी लाइफ से। ये 1 महीने पुरानी ही बात है कि हमारी एक टीम पार्टी थी, और बहुत देर बाद हमारा कोविड में, एक तो क्योंकि 1.5 साल से 1.25 साल से तो ऑफिस में कोई मिला ही नहीं था, और हमारी टीम थी, और तो हमने अभी सोचा कि हम अभी टीम का गेट टुगेदर करेंगे और हम बाहर जाएंगे। और अब मैं समझता हूँ कि भाई मुझको मेरा एक तो मेरा जाना भी जरूरी है, क्योंकि ये मैं छोड़ नहीं सकता, मैं नहीं जाऊंगा तो वो बोलेंगे ये तो बिल्कुल ही नहीं आया, और इट विल गिव अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन टू माय टीम मेंबर्स। तो मुझे जाना था, मेरी एक ये तरह से फॉर्मेलिटी की तरह इसको मैं लेना पड़ा मुझे। और तो वहां पे जाके अब ऐसा भी नहीं है कि मैं उनको बोल दूं कि सॉरी मैं तो ऐसे ऐसे है अनियन गार्लिक में नहीं खाता हूँ, और बट उनको पता है, मेरी टीम को पता है कि ये इस्कॉन से है और ये अनियन गार्लिक खाता नहीं है। बट टू रिमाइंड देम, तो मैंने क्या करा कि 2-3 दिन पहले ही मीटिंग्स में जब हम डिस्कस करते थे कि पार्टी ऐसी होगी, तो मैं किसी ना किसी तरीके से उनके दिमाग में ये बात डाल देता था कि देखो आप सरप्राइज मत हो जाना कि जब मैं वहां जाऊंगा और मैं कुछ खाऊंगा नहीं, या फिर वैसे कुछ मैं गार्लिक वाला कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि देयर दे विल हैव ऑल काइंड ऑफ अदर स्टफ,
and like that. And because I have to do that because it is related to business and related to my job, so I have to go. And how what to do? So in that case, I pray and then I go, and there somehow the other the arrangement has been made that I get onion garlic food, and I and in that way it is a normal situation for me where everybody is also satisfied that I have come, and I am also satisfied that I have not broken anything. And but the most important part is जब सब कुछ हो रहा है and there are two people who are appreciating me कि मैं भी एक दो और लोगों को जानता हूँ, वो तो कहीं आते जाते नहीं, बट तुम आए, और ऐसा नहीं है कि तुमने बिल्कुल छोड़ दिया, तो तुम हमारे लिए आए भी. सो और उस तरीके से, एंड बट यू मेंटेन योर स्टैंडर्ड एज वेल एंड यू केम एज वेल, सो दे अप्रिशिएटेड in that sense. But मैंने उनको नहीं बोला कि you appreciate me, और मैंने उनको नहीं बोला कि that you कि देखो देखो मैं इतनी austerity कर रहा हूँ और इतना कुछ हो रहा है. For me it is normal that हम घर, और इनफैक्ट अगर हम उनको बताने में लगेंगे तो हम बोलेंगे आप तो जो ये खा रहे हो उसको तो कुछ है नहीं, हम भगवान को भोग लगा के जो प्रसाद पाते हैं उसकी बात ही कुछ और है, और उसका आनंद ही कुछ अलग मिलता है. कभी इस्कॉन लव फीस्ट में जाके देखो क्या क्या नहीं होता, और कभी जन्माष्टमी के जो 56 भोग लगता है, इतना सारा opulent food मिलता है, sumptuous food. Prabhupada used to say is that you will forget what I used to eat some time back and what others are eating. So that is called param drishta nivartate, and it all depends on our conviction, because if we are convinced and if we have that kind of conviction, then that will automatically reflect in others as well. It all depends at how we are going to carry. It all depends on how much I myself is convinced. And agar मान लीजिए नहीं भी होता, then how is it mattering? How does it matter to you? मतलब हमको वो किस तरह से impact डालता है? That is why in initial stages we should always remain in the association only and just stay point to the point with others who are there like that. But sometimes we have to associate, we have to take. But if we will open our heart to them, then we will get impacted. Because what we are doing right now, those who are non-devotees, we are opening our heart and we are letting them ki aao aur mere ko impact dalo. But why do I have to do that? There are two ways of association. Either I can give association or I can take association. So we have to be intelligent enough and practical enough that we should see that where am I giving association and where am I taking association. If I'm taking association, that means I am opening my heart to them. And if I'm giving association, that means they are getting what I want them to get. इसी तरह से, so that is how we can preach also in that manner, and subtle way of preaching, because office is bit difficult situation to handle, and we cannot always break the ice in a similar manner कि यहाँ पे तो आए devotees आए, उनको पता है क्या सेट है, स्क्रीन स्टार्ट करी, भगवद गीता में पढ़ना शुरू कर दिया और हमने पढ़ भी लिया, जो कह रहे हैं प्रभु जी ने बोला वो ठीक है, मान भी लिया. बट ऑफिस में ऐसा नहीं होता है. It is not like that. There, somebody is senior to me, somebody is junior to me. So different setup, different situation, all things different. But there we have to see how intelligently we have to see, and the same thing also goes with relatives also. And there it becomes little more tricky because वहाँ पे थोड़ा emotional element भी picture में आ जाता है. I remember कि when I had recently got married. And there it becomes little difficult क्योंकि हमको इतनी जगह जाना होता है and सबको बोलो सॉरी जी हम चाय नहीं पीते, और पंजाब में जाके किसी को बोल दो कि चाय नहीं पीते तो वो ऐसे घूर के देखेंगे आपको कि हो चाय नहीं पीते तो आपने तो ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल तोड़ दिया कि तुम चाय नहीं पीते. उनका रेगुलेटरी प्रिंसिपल है कि चाय पीना है. आपने तो आप चाय नहीं पीते तो चलो कॉफी बनाते, कॉफी भी नहीं पीते तो क्या पीना, दूध पी लेंगे. और तो हाँ हमने कहा हाँ जी दूध पी लेंगे. वाह 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 कितने सात्विक लोग हैं, दूध पीते हैं, और या तो जूस ले लो या फिर कुछ और ले लो, कभी लिम्का स्प्राइट ऐसे कुछ चीजें ले ली. सो लाइक दैट. And but it all depends on that how we are how much conviction do we have. And initially सबके साथ ऐसा ही रहता है, मेरे साथ भी ऐसा रहता है. बहुत बार ऐसा हुआ है कि अभी तो कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि दूसरा माने ना माने मैं अपने आप को बचा लूं, है ना. बट कई बार जब हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और भक्ति में, तब ये होता है कि
मैं तो I am protected, I know, because I am stuck to the lotus feet of Krishna, and मैं भगवान को प्रे करूंगा कि ठीक मैं प्लीज बचा रहूं, और शिला प्रभुपाद को प्रे करूंगा कि मेरी सिचुएशन ऐसे बना के रखना कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम ना आए इस तरीके से, और मैं ये जो प्रिंसिपल है इसको अच्छे से फॉलो कर पाऊं, एंड और दूसरों को भी मैं इसको समझा पाऊं। तो बहुत आराम से it happens. It all depends on our conviction and like that. And it becomes a little difficult with relatives and with those who are very close friends. अब एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि recently one of my friend they had come from like Punjab to Gurgaon, and उसकी अभी recently शादी होने वाली है, so he had come with her fiance, and मेरा भी यहाँ पे एक friend है, so they have then seen the same Ronnie in different phases, है ना, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स 10 साल से 12 साल से हैं, तो उन्होंने सब फेजेस देख लिए हैं कि जब कॉलेज में था तो ये ऐसा था, अब उसके बाद इसने कुछ नया ही ज्वाइन कर लिया है, अब ये ऐसा हो चुका है, अब उसके बाद ये थोड़ी काफी देर से इसने मेंटेन किया हुआ है, पहले शायद खा लेता था, अब मेरे को लगता है नहीं खाता, कभी कभी खाता हुआ है नहीं, बट अब पक्का है कि ये नहीं खाता। सो देन दे विल ऑलवेज बी वेरी मच appreciative as well as very much caring in that way कि यार इसके लिए तो कुछ और बुलाओ, इसने तो खाना नहीं है, तो हमारे को मुसीबत आ जाती है। So then they will take care of you, and because we have maintained that relationship and in a way, and we have stick to that standard as well. So it all depends on how much conviction we have, and but most importantly it depends on that किसका हम shelter ले रहे हैं before going and to see, because we should always take the shelter of Srila Prabhupada and the shelter of Guru Maharaj and the devotees, that if we are going, that please help me that I am able to maintain this thing and not get diluted and I don't break anything. So like that, it is very, very important. Whenever I used to go, like for example, Bangalore, and there also, like it is a very difficult situation because I have to go client side and like that, and then it becomes very important for us to take the shelter and pray in a very humble mood that this may go out of my control anytime. It is you who have to make this situation favorable to me, Krishna. It is you who have to make favorable to me, Srila Prabhupada. So in that way, you will always get help. Thank you so much, Prabhuji. लंबा आंसर हो गया, but नहीं. Yes, it was great, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. So with this, we will end our today's session. We have already crossed 15 minutes, 15 more minutes. So we will end our session today. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnavind ki jai. Thank God, Premanande, Hare Krishna. Thank you for joining. We will meet next Sunday. Thank you, Shri Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Shailesh Prabhu. How are you? All well, Prabhuji. All well. Good How to are see you? you. Good to see you, Prabhuji. Good to see you, Thank Shashi Mataji as well. Yes. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna.